Assalamu alaikum, this is Abdul Wahid, the guest, Aaj TV, weekly magazine, newspaper and TV channel. Today we are here, World Cancer Day, awareness, motivation, core and cause. We will discuss many things with the students, doctors and professor. Dr. Sahar is here and other doctors team are here. Let's interview to them how to aware and cure cancer. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What is your name? Dr. Jiosman. Okay, what about your profession? What do you do according to doctor and awareness? Today is Cancer Day, awareness, over here, mega event, big event. So what about core and cause of the cancer? Survival is painful or very easy to survive the cancer treatment? First of all, I am Dr. Jiosman from Liari General Hospital. I am a house officer there in gynae department. So basically we have organized this kind of talk and awareness programs for the layman people, because educated people, you know, if they are doctors or non-doctors, it doesn't make any difference. If someone is educated, they can get information, they can get awareness from any view. They can read something in English, they can get view. No? So basically the purpose of such kind of seminars and such kind of awareness talk is for the layman term. So here we are to create awareness for people, like most common cancers are breast cancer, cervical cancer, ovarian cancers. Most common cancer in the world is lung cancer, in women is cervical cancer, or then breast cancer also. So our motto is that a woman should know what is the basic symptoms, because breast cancer is curable only if it is diagnosed at an early stage. So stage on which it is diagnosed, it's very much important. If it is diagnosed at an early stage, it is surely curable. So we are here to create awareness so that if a woman may feel any change in her breast or in her cervical area or from any side of her body, she can got to know that where I am heading towards. So should I start with some kind of symptoms, or you want to ask something else? I want to know that कैंसर का जो नाम है, लोग डर जाते हैं, नाम सुन के ही कुछ लोग बीमार हो जाते हैं. तो कैंसर का जो नाम जो कि डरा देता है नॉर्मल इंसानों को और कैंसर पेशेंट को, तो डॉक्टर हजरात जो हैं वो मोटिवेशन है सबसे पहले. तो उसके अलावा डॉक्टर हजरात कहते हैं कि देखिए आप नो प्रॉब्लम, नो डेंजर, एवरीथिंग इज़ क्योरेबल, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट एवरीथिंग. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इलाज तो मुमकिन है, बट व्हाट अबाउट द मोटिवेशन एंड जो लोग डरते हैं उनके हवाले से क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमें पेशेंट को थोड़ा सा भरोसे में लेना होता है, लाइक उनको उनकी डिजीज़ के बारे में बताना होता है. और आपको ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन दैट यू नो हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज़. इफ समवन इज हैविंग कैंसर, you should first tell them that what they already knew about their disease. Then step by stage with each kind of cure, you should also tell them options. Why you always scare the patient? Tell them option that is very much curable if it is diagnosed at an early stage. And there are fighters, there are warriors, there are numerous examples that have beaten cancer. कैंसर के हवाले से जो मामलात हैं, जो तकलीफ़ है, तो ट्रीटमेंट कब शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? क्या डायग्नोस्टिक में टेस्ट मौजूद हैं? सबसे पहले बेसिक्स. देखिए, सबसे बेसिक, इफ़ आई शुड स्टार्ट इन उर्दू और इन इंग्लिश, व्हाट यू वांट? As you wish, as you're comfortable. देखिए, if it is for layman, I should go with Urdu. 70% over here, Pakistan public, they speak Urdu. Because layman है, we should speak in our national language है. तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ख़वातीन को ये पता होना चाहिए कि उनके जिस्म में किसी भी किस्म का जो चेंज है, उन्हें उसको सबसे पहले नोटिस करना आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, उनकी छाती में अगर किसी किस्म का पस या मवाद खारिज हो रहा है, दिस इज़ अ सिम्टम. ठीक है, अभी जो भी मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जिस पे आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए. ठीक है, आपका जो छाती है उसकी शेप में फ़र्क आना, ठीक है, उसमें कोई गुठली का बनना, ठीक है, उसका सूज जाना, उसका लाल हो जाना, उसके ऊपर से स्किन का उतरना, ठीक है, खाल का उतरना, उसका सुर्ख हो जाना, ये वो कुछ सिम्टम्स हैं. ठीक है, या फिर आपका एक तो वो जर्नल सिम्टम है कि आपका अगर आपको बहुत पता नहीं चलता तो लेट स्टेज पर जब ये पता चलता है तो फिर तो वेट लॉस होता है, फिर ये जहाँ फैलता है फिर उसके सिम्टम देता है.
लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के असली सिम्टम है वो कुछ 4-5 है कि किसी किस्म का पस या मवाद का खारिज होना छातियों में से, उसकी शक्ल का बदल जाना, उसका सुर्ख हो जाना, किसी किस्म की गुठली का उसमें मिलना, गुलाबी रंग का हो जाना, या फिर उसमें किसी किस्म का ज़ख़म पड़ जाना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो औरतों को जो हैं वो ख़ुद अपनी छाती में मुआयना करना चाहिए। और हमारी अवेयरनेस फैलाने का मकसद भी यही है। अगर आप चार्ट्स वगैरह देखें कि हमने सेल्फ़ एग्जामिनेशन कैसे, यानी देखें डॉक्टर तक आते आते तो बहुत देर हो चुकी होती है ना। जब तक आपको पता है डॉक्टर तक लोग एक लेमन, एक जो मिडिल क्लास तबका है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत देर से आता है, ठीक है, क्योंकि एक तो हर चीज़ यहाँ महंगी बहुत हो गई है, देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो, तो लोग अपनी हेल्थ को नहीं लेते इतना पहले। तो अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन को प्रमोट करें ना, कि आप खुद शीशे में खड़े होकर अपना एग्जामिनेशन करें कि आपको ब्रेस्ट में फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा, आप अपने हाथ से खुद फील करके देखें, क्योंकि जो इंसान खुद अपनी नहीं फील कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। आप ऐसे फील करके देखें और जैसे ही आपको कोई चेंज नज़र आए आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और आप उसको दिखाएँ, क्योंकि देखें ब्रेस्ट कैंसर इज़ श्योरली क्योरेबल, बिल्कुल इलाज है इसका, स्टेज पर डिपेंड करता है। वही चीज़ जो लोगों ने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके बिल्कुल छोटी सी गुठली निकलवा के ट्रीट हुए हैं, वही अगर किसी ने लेट डायग्नोस किया है तो फिर पूरे ब्रेस्ट भी रिमूव हुए हैं और फिर रेडिएशन भी लगी है, कीमो भी लगी है। इसीलिए हम औरतों को कहते हैं कि अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करें, बाकायदा महीने में 1 दफ़ा या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा करें, खुद छाती का मुआयना लेट के करें, अपनी 3 उंगलियों को जो है अपनी छाती के ऊपर चारों जानिब घुमाएं, किसी भी किस्म की अगर आपको महसूस हो रही है कोई भी जैसे कि खून का निकलना, पस का निकलना या गुठली मौजूद हो जाना वहाँ पे। इसके अलावा शीशे में जो है ना अपनी छाती को देखें, अगर आपको उसकी शेप में फ़र्क आ रहा है तो फ़ौरन ये आप अपने डॉक्टर्स के पास जो है ना रुजू करें, कोई मसला नहीं है। हमारे पास बेसिक टेस्ट भी यहाँ पे मौजूद है जिसमें हम मेमोग्राफी करवाते हैं हम पेशेंट की, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसके बेसिस पे। जैसे FNAC अगर हमें प्रेडिक्टेबल ऐसा लग रहा होता है कि ये है कोई सस्पिशियस लंप है तो हम उसकी FNAC वगैरह करवाते हैं, लंग ब्रेस्ट बायोप्सी करवाते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। अगर तो वो एक मतलब लोकलाइज होगा ना तो हम उसकी अगर से सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है तो सिर्फ उसको निकाल के जो पब्लिक हमें देख रही है, दिस इज नेशनल टीवी, तो आप लोगों से कैसे रब्ता कर सकते हैं? हमसे हम हॉस्पिटल में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं हम लोग, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम मौजूद ना हो। जो भी मसला हो, कोई भी मसला हो, आप जो है ना OPDs में आ सकते हैं, हमारे लेबर रूम मौजूद हैं। हम वैसे भी कहीं मिल जाए ना तो हम अपनी OPD वहाँ भी चला सकते हैं। The name of the hospital? लियारी जनरल हॉस्पिटल। Okay. And location, where is it? लियारी जनरल It's in the हॉस्पिटल main Liari hospital. It's नियर द एक्सप्रेसवे। near. Okay, if you want to go to Liari Hospital, then Google it. Google Map is everywhere. Thank you very much. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What is your name? Soma. Soma. You are looking princess to me. Thank you. What is your profession? What do you do? I am student of MBBS first year in SMBB MC Liari, Okay. and today we are here for World Cancer Day awareness walk, and we are here for awareing the people that cancer is treatable. We can treat cancer, and it is a curable disease. We can cure cancer. वर्ल्ड कैंसर डे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर। पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से बात होगी डॉक्टर सहर से। शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Dr. Seher, big name, big fame, everybody knows. Ma'am, what about today, World Cancer Day, public social message and awareness? What do you say? Ma'am, कैंसर का जो नाम है लोग डर जाते हैं इस नाम से। डॉक्टर सहर, आपने कैंसर को डराया हुआ है, पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आपके पास? Thank you so much for joining us today on World Cancer Day walk. This is a big day today. Worldwide, 4th February is the day when World Cancer Day is celebrated, and the main purpose is to give people awareness about what is cancer, how it can be cured, and it's not something that you will keep quiet about. You have to talk about it. So that's why today we ask people to just talk about cancer. It's a time that you should open up. You should ask what is cancer, especially if you have a family history. You should ask us what is cancer. Being a cancer surgeon myself, I've seen many patients who are coming at later stages, stage 3 and 4, and the main reason is that the people don't know what are the symptoms, or their doctors don't know what are the symptoms, so the patient are not referred at the right time. They are coming so late. When you came later for the disease, when you came in stage 3 and 4 cancer, yes, we will do surgery for you, we will do chemotherapy, radiotherapy for you. But if you come in early stages, then we will give you a better cure. So this is our message for today. Talk about cancer. Please come to us early.
it can be cured if you come early. So join us in this walk. Thank you. I will thank the media, and I will thank the Sindh Police will join us today for this cause to give awareness about people, what is cancer, how it can be defeated. And my special message to everybody, all male and female, if something is different in your body, for example, if you have a lump, if it's redness, if the skin is changed, if you think something is other than normal, then this is a sign of symptom. Just talk about it. We are giving cancer surgeries, we are doing cancer surgeries, we are giving treatment for cancer free of cost. So you don't have to worry about the expenses. You just have to come to us. Rest is up to us. We have treated more than 1,000 gynae cancer cases. It's just free of cost. So it's the time you need to come with us. Please come us, join us, talk to us, ask your queries. It's the time that you should speak about cancer. Dr. Seher is talking about free cure of cancer diseases. So, Dr. Seher, पब्लिक कैसे रब्ता कर सकती है आप लोगों से? हमने एक नंबर दिया है आज के कैंपेन में। हमने जो लोगों में शर्ट डिस्ट्रीब्यूट की, कप्स दिए, उसमें हमने एक नंबर दिया है। सो हमें व्हाट्सएप करें, आप हमसे अवेयरनेस लें, हमारे क्लिनिक्स में आएँ। वी हैव द स्टार्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक जो हम DHA में लॉन्च कर रहे हैं। सो जो इसमें हमारे गरीब पेशेंट हैं या ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट होगी। जो अफोर्ड कर सकते होंगे, इट विल बी नॉमिनल फॉर देम। मगर बार बार जो हम कहते हैं कि हम फ्री सेशन इसलिए दे रहे हैं कि आएँ और हमें बताएं। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आप घर में आराम से बैठें, लेकिन अगर आपको कैंसर है तो आपको पता तो चले कि आपको इलाज की ज़रूरत है। हमारी यंग जनरेशन अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस है। गुटखा, पान, छालियाँ, नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग और बहुत सी ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता को कैंसर की तरफ ले जा रही है। जिस तरह मल्टीपल सर्जिकल पार्टनर और अनहेल्दी सर्जिकल एक्टिविटी ये लीड करती है कैंसर की तरफ, और लोगों को ये पता ही नहीं है। सो इट्स अ टाइम दैट यू शुड कम टू अस। आएँ, हमसे बात करें। हमने आपको नंबर्स दिए हैं। आज हमने कुछ गेम्स भी रखे थे और उसका मकसद यही था कि लोगों से कहें कि हेल्दी रहने के लिए एक्टिविटी, गेम्स एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो करें, और आएँ, आपको हमारे साथ शामिल हो जाएं इस वक्त। मैम, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड नंबर्स तो अभी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उसके अलावा हाउ डू आई गेट देयर? व्हाट अबाउट द स्ट्रीट एड्रेस एंड लोकेशन? मेरी प्रैक्टिस है अंकल सैयद हॉस्पिटल में सदर में और बेबी हॉस्पिटल में DHA में। मगर हमारा जो बेसिकली जो ग्रैंड है, जो ये सारे हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, द एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, ये बेसिकली कैंपेन है एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट की, जो बता रहे हैं कि जिस तरह हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो जो अर्ली बेनाइन केसेस हैं उसमें बगैर कट का ऑपरेशन हो जाता है, जिसको आम ज़बान में ये लोग लेज़र ऑपरेशन या बगैर कट का ऑपरेशन कहते हैं। इट्स अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे पास एडवांस 3D 4K जो सबसे एडवांस सिस्टम है वो पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है, और उससे जब सर्जरी हो जाती है तो उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली इट्स अ टाइम कि आप अवेयरनेस लें, आएँ। हम आपकी स्क्रीन के ज़रिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा फेसबुक और यूट्यूब कॉन्टैक्ट दें ताकि लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। और अब एस्थेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अर्ली ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हो रही है, लेकिन वो स्कारलेस हो सकती है, उसमें कोई स्कार नहीं है, ये पॉसिबल है। सो इट्स अ टाइम दैट यू शुड कम अप एंड टॉक टू अस। Dr. Seher with us, one of the great doctors in the country, we say. Dr. Seher, we feel you, we miss you, we love you, we appreciate you. Thank you very much with that. Thank you so much. Thank you so much. मैगजीन मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर ज़िशान। वर्ल्ड कैंसर डे है एंड अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम है। बात करते हैं डॉक्टर ज़िशान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़िशान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ज़िशान, आपको देखना, आपसे बात करना हमें लगता है यू आर वन ऑफ द ग्रेट डॉक्टर्स इन द कंट्री, एंड आप कैंसर मोटिवेशन एंड अवेयरनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये ख़्याल है क्योंकि कैंसर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम लोग हमने आज की आगाही मुहिम और वॉक इसीलिए रखी है ताकि लोगों को ये आइडेंटिफाई हो सके कि कैंसर एक बीमारी इलाज मर्ज नहीं है अनटिल एंड अनलेस टाइम पे आप डॉक्टर को तशख़ीस के लिए दिखा लें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना मुआयना करते रहें,
ख़ुद से जहाँ पे भी जो ख़वातीन जिनको छाती का में कोई भी गुठली महसूस हो वो फ़ौरन अपनी गायनाकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कांटेक्ट करें। और जो मर्द हज़रात या जो ख़वातीन जो गुटखा, मावा, छालिया इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास बहुत प्रेवलेंट हैं, जो बहुत यूज़ होती हैं, उनको अपने मुँह में अगर जलन हो, कोई कट हो, कोई गुठली हो या खून आना हो, या इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगे तो पहली आप टाइम में दिखाइए कोई अपने पर्सनल डॉक्टर को या फिर किसी फिजिशियन को, ताकि कैंसर का इलाज ऑन टाइम हो सके। कैंसर लाइलाज नहीं है, अगर आप वक्त पे डॉक्टर को दिखाएंगे तो बिल्कुल उसका इलाज मुमकिन है। कैंसर लाइलाज नहीं है, इलाज हो सकता है, आसानी से हो सकता है। थोड़ा हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। सर, कैसे बचा जा सकता है और कैसे फ़ाइट कर सकते हैं कैंसर से? प्लीज़ सर, डॉक्टर ज़ीशान। कैंसर को पेशेंट को हम कहते हैं कि ये जो भी कैंसर से फ़ाइट करता है एक्चुअली वो वॉरियर है, क्योंकि कैंसर ये ऐसी बीमारी है जो बहुत स्पीड से हमारी बॉडी के सेल्स को खा जाती है। तो हमको बहुत ज़रूरी है इस पेशेंट को ये आगाह करने का कि पेशेंट अपने आप को इस तरह बचा सकता है कि वो इस तरह की गुटखा और छालिया इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। ख़ास तौर पे अपने घर, अपने आसपास के लोगों को ये आगाही ख़ुद भी दें और डॉक्टर से भी आप रुजू करें, वो भी आपको अच्छा सा इन्फॉर्मेशन इस बारे में देंगे। उसके अलावा जो ख़वातीन हैं जिनमें छाती का कैंसर ख़वातीन में हमारे पास बहुत कॉमन है, तो उनको चाहिए कि अपना ख़ुद से मुआयना करते रहें। जहाँ उनको गुठली या इस तरह की कोई चीज़ महसूस हो वो अपने करीबी डॉक्टर के पास रुजू करें। कैंसर से बचाव का तरीका सिर्फ यही है कि कैंसर को ऑन टाइम, जब आपको तकलीफ़ हो, छुपाएं नहीं। कैंसर को ऐसी बीमारी नहीं है जिसको छुपाना चाहिए, बल्कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो फ़ौरन इलाज होना चाहिए। उसके लिए आप फ़ौरन जाएं और अपने डॉक्टर से रुजू करें या करीबी डॉक्टर जो भी हो उसको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कैंसर की बीमारी एक तकलीफ़ दे, एक दर्दनाक अमल है और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल मुश्किल भी क्रिएट करता है और फिज़िकली भी पेशेंट बहुत परेशान होता है। सो इट्स बेटर के प्रिवेंशन करें इसके बजाय कि आप क्योर की मुश्किल से गुजरें। डॉक्टर ज़ीशान, इलाज काफ़ी महंगा है, मैनी पीपल सेड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड कोर, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं? 70% आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% पीपल आर नॉट एजुकेटेड एंड ऑल्सो हेल्दी माइंड, सो व्हाट डू दे डू? जो द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल हो। अगर लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, खाने पीने में ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा चिकनी चीज़ें नहीं हो, अच्छा हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, बैलेंस डाइट हो। और बैलेंस डाइट सुनते ही हम लोग समझते हैं बहुत क्योंकि मुश्किल अमल है। बैलेंस डाइट सिर्फ सिंपल है कि हमारे खाने में प्रोटीन यानी कि गोश्त, अंडा, इनकी मकदार भी मुख्तसर हो और सब्ज़ी की मकदार भी मुख्तसर हो और दालों की मकदार भी मुख्तसर हो। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को खाने से आपकी जिस्म में नमकियात की भी कमी होती है और आप तकलीफ़ में भी रहते हैं। तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी डाइट को मैनेज किया, बैलेंस किया, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम बात ये करेंगे और कराची में जहाँ हम ये प्रोग्राम हो रहा है कि ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छी चीज़ खाएंगे, आप जो खुद देखेंगे कि आपके जिस्म में आपको लाइट भी फील होगा और आप एक्टिव भी रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कैंसर के लिए कि हम कैंसर की प्रोटेक्शन करें, अपने आप को भी, अपने सराउंडिंग के लोगों को भी। जितनी भी ऑयली चीज़ें और अपनी बैलेंस डाइट को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छा करें, इससे आपकी कैंसर से बच भी सकते हैं और आप दूसरों को भी इस बात से आगाह करें। बाकी जहाँ तक आपने ये बात की कि कैंसर का इलाज इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, येस इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इसीलिए ही हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। इसके बजाय कि आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं, आप बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि डॉक्टर को दिखा के उसका बर वक्त इलाज करवा लिया जाए, क्योंकि फिर क्योर पे जाएंगे तकलीफ दे अमल भी है। हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे होता है फ्री में कैंसर का इलाज, मगर मुश्किल इलाज है, तकलीफ़ दे इलाज है। इस इलाज से गुजरने से बेहतर है कि प्रिवेंशन की जाए और उसका बहुत आसान हल है। बैलेंस डाइट हो, अच्छा वॉक हो, अच्छी एक्टिविटी गुजारें, अपने लिए भी हैं, अपने आसपास अपने बहन भाइयों, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए भी मुश्किल कम क्रिएट करेंगे अगर हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करते जाएं, जिनमें गुटखा, छालिया वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल मेरा ये मानना है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल वाहिद को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नोमान शाह साहब के साथ आज की आवाज़ न्यूज़ चैनल।